السلام علیکم، میں ہوں اریبہ معین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز نیوز۔ آئیے چلتے ہیں آج کی علاقائی خبروں کی طرف۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اینڈ اینٹی نارکوٹکس مستونگ کی اہم کارروائی، ٹرک کے خفیہ خانوں سے 110 کلو گرام چرس برآمد۔ ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ اینٹی نارکوٹکس ضلع مستونگ کی بڑی کارروائی، کئی منشیات برآمد، ٹرک قبضے میں لے لیا۔ ڈی جی ساؤتھ زون محمد زمان خان کی خصوصی ہدایت پر مستونگ روڈ سنگر بائی پاس کے ایریا میں ایک ٹی او ایکسائز ضلع مستونگ دیدار علی جمالی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ناکہ بندی کرتے ہوئے کامیاب کارروائی کر کے ٹرک کے خفیہ خانوں سے 110 کلو گرام اعلیٰ کوالٹی کی چرس برآمد کی، جس کی قیمت عالمی منڈی میں کروڑوں روپے بتائی جاتی ہے۔ دیدار علی جمالی ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ اینٹی نارکوٹکس آفیسر مستونگ نے اپنے آفس میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جناب محمد زمان خان ڈائریکٹر جنرل ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ اینٹی نارکوٹکس ساؤتھ زون کی خفیہ اطلاع پر انچارج انسپکٹر منور احمد مری کی سربراہی میں ایک ٹیم تشکیل دی گئی۔ اطلاع ملنے پر کوئٹہ کراچی نیشنل ہائی وے پر چیکنگ کے دوران مستونگ بائی پاس روڈ کے مقام پر مذکورہ ٹرک نمبر RIJ 6575 کو روکنے کا اشارہ کیا، جس پر ٹرک ڈرائیور نے گاڑی روکنے کی بجائے گاڑی کو بھگانے کی کوشش کی، جس کا ایکسائز ٹیم نے پیچھا کیا۔ کچھ فاصلے پر ٹرک ڈرائیور نے ٹرک روڈ کنارے کھڑا کر کے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر فرار ہونے میں کامیابی حاصل کر لی۔ ٹرک کی جامع تلاشی لی کے دوران چیکنگ ٹرک کے خفیہ خانوں سے 110 کلو گرام چرس برآمد۔ دوران چیکنگ ٹرک کے خفیہ خانوں سے 110 کلو چرس برآمد ہوئی۔ منشیات اور ٹرک قبضے میں لے کر مقدمہ درج کر لیا، جبکہ مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اہم اور بڑی کامیابی ہے۔ منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ فیصل آباد سے بیورو چیف حماد سومرو کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد علی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول نے تحصیل بھر کے 36 شادی ہال سیل کر دیے۔ تفصیلات حاصل کریں گے حماد سے۔ جی حماد بتائیے گا۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول نے کمانڈو ایکشن کرتے ہوئے تحصیل بھر کے 36 شادی ہال سیل کر دیے، جن میں حکومت پنجاب کی طرف سے نافذ کردہ ہدایات تک شادی کے پروگرام پر پابندی ہوگی، تاہم صرف آؤٹ ڈور پروگرامز کے SOPs تحت جاری کیے جائیں گے۔ سانگے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن ایڈوکیٹ الطاف حسین جنیجو نے میدان مار لیا۔ 324 وکلا میں 773 وکلا نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ سانگے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کا مارکا 324 وکلا ووٹر میں سے 373 وکلا نے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ ڈسٹرکٹ بار صدر کی سیٹ پر ایڈوکیٹ الطاف حسین جنیجو نے 169 ووٹ لے کر دوسری بار صدر منتخب ہوئے۔ ایڈوکیٹ الطاف حسین جنیجو کا تعلق تحصیل ٹنڈو آدم سے ہے۔ الطاف حسین جنیجو کے مد مقابل ایڈوکیٹ ظفر حیات پٹھان نے 99 ووٹ لیے اور ہار گیا۔ جنرل سیکرٹری کے لیے ایڈوکیٹ محمد شریف مصرانی اور رضا خاص خیلی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوا۔ محمد شریف مصرانی نے 173 ووٹ لے کر جنرل سیکرٹری کا انتخاب حاصل کیا۔ اس کے حروف ایڈوکیٹ محمد رضا خاص کے لیے 94 ووٹ لے کر ہار گئے۔ لائبریری سیکرٹری سیٹ کے لیے ایڈوکیٹ خادم لگاری اور ایڈوکیٹ کاشف کے درمیان مقابلہ ہوا۔ ایڈوکیٹ خادم لگاری نے 235 ووٹ لیے ریکارڈ قائم کیا، جبکہ ایڈوکیٹ کاشف نے 24 ووٹ لے کر ہارنے والوں کی لسٹ میں اپنا نام لکھوایا۔ اس موقع پر الطاف حسین جنیجو گروپ نے ایڈوکیٹ ظفر حیات پٹھان گروپ کو جیت کر کامیابی سے ہمکنار کیا۔ صدر کی سیٹ پر 5 ووٹ اور جنرل سیکرٹری کی سیٹ سے 6 ووٹ خارج قرار دیے۔ اس موقع پر نومنتخب صدر الطاف حسین جنیجو نے کہا کہ وکلا برادری کے مسائل کے ساتھ ساتھ عوامی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن الیکشن کی مدت 1 سال سے بڑھا کر 2 سال ہونی چاہیے۔ تمام وکلا کا شکریہ ادا کیا۔ ایڈوکیٹ ظفر حیات پٹھان نے اپنی ناکامی قبول کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ کامیاب گروپ وکلا کے مسائل پر توجہ دی جائے گی۔ گوٹ تنو خان جمالی میں عظیم الشان صابری محفل منعقد کی گئی، جس سے پیر خیسر جمیل حیدر شاہ صابری نے روحانی خطاب فرمایا۔ گوٹ تنو خان جمالی میں ایاز صابری، نواب صابری، میر مومن خان جمالی کی قیادت میں عظیم الشان صابری محفل منعقد کی گئی، جس میں سندھ بلوچستان سے بڑی تعداد میں صابری عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ محفل سے پیر کیسر جمیل حیدر شاہ صابری سجادہ نشین مکہ شریف شورکوٹ نے خصوصی پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا، جس کے بعد آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا گیا، جبکہ لنگر فی سبیل اللہ کا وسیع انتظام کیا گیا۔ اس موقع پر پیر جمیل حیدر شاہ صابری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، نماز صرف اللہ کی عبادت ہے، مگر یاد رکھو کہ نماز میں درود پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا گیا ہے، اور اللہ کی نماز میں بھی محمد اور آل محمد کا ذکر ہے۔ اور اس واقعے کو بھی یاد رکھے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں محمد مولا
हूँ उसका अली भी मौला है। यही वो जिक्र है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिक्र इबादत ना होता तो अल्लाह ताला उसको नमाज में ना डालते। याद रखो कब्र दूर नहीं, जब दिन महशर का होगा वहां कुछ भी नहीं सुनी जाएगी। अपने अमालों को दुरुस्त रखें, गुनाहों से माफी मांगे और आइंदा गुनाहों से तौबा करें। बलूचिस्तान गोट हाजी शहदाद खान के रहायशी अली शेरविन ने अपने बेटे के हमरा मीडिया के नुमाइंदों को फरियाद सुनाते हुए कहा कि साबिक सूबाई वजीर अब्दुल गफूर और सूबाई वजीर हाजी मोहम्मद खान अब्दुल रऊफ ने हमारा जीना मुहाल कर दिया है। आए रोज पुलिस थाना मंजशोरी, पुलिस थाना बाबाकोट और पुलिस थाना खानकोट के SHOs के जरिए बेगुनाह हम पर पुलिस के जरिए तशद्दुद करवाना रोज का मामूल बन चुका है, जबकि हमारे 48 एकड़ ज़रई जमीन वहां मौजूद है जो कि हमने जफरिन से खरीदी है, जिसके ऊपर 2 दफा सूबाई वजीर हाजी मोहम्मद खान ने हमारे ऊपर नाजायज केस किया, जबकि वो केस कमिश्नर नसीराबाद और डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद ने हमारे हक में दिया है। इसके बावजूद भी हमारी जमीन पर आकर सरकारी इमारत तामीर करने की कोशिश कर रहा है और आए रोज पुलिस की गुंडागर्दी के जरिए हमारी जमीन पर कब्जा करके हमें अपनी जायदाद से बेदखल करना चाहता है। लिहाजा हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कोर कमांडर बलूचिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान, IGFC और IG पुलिस बलूचिस्तान से अपील करते हैं कि वो नोटिस लेकर हमारे साथ इंसाफ करें। गरीबों और बेसहारा लोगों की जमीनों पर कब्जा करने वाले सूबाई वजीर और उनके भाई ओहदे का नाजायज फायदा उठाते हुए नसीराबाद के इलाके में हम जैसे कई और खानदान भी शामिल हैं जिनकी जमीनों पर कब्जा करते हैं। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने कहा कि 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने के दावेदार ने लंगर खानों का इफ्तिताह करके कौम को खैरात के पीछे लगा दिया। रियासत मदीना में दोहरा कानून नहीं होता, जहां अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग कानून है। बिजली चोर को जेल में डाला जाता है, आइन तोड़ने वाले को VIP प्रोटोकॉल के साथ बैरून मुल्क भेजा गया। इमरान खान ने कश्मीर मोदी को बेच दिया है। मुल्क में सूदी निजाम राइज करके कौम के तशख्खुस को दाव पर लगा दिया गया। डेरा अलाचार में जमात इस्लामी बलूचिस्तान के सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर अब्दुल मजीद बातेनी की जानिब से मुनक़दा जलसे आम से खिताब करते हुए सिराजुल हक का कहना था कि इक़्तिदार से कबल 200 माशी माहिरीन की टीम की बातें करने वाले ने इक़्तिदार में आते ही अंडे, मुर्गी और कट्टे देने शुरू कर दिए। कौम को लंगर खानों की नहीं कारखानों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्क में इंसाफ, तालीम और सेहत समेत आवाम को कुछ भी हासिल नहीं। जालिमों का टोला तकसीम दर तकसीम के फार्मूले पर अमल करते हुए कौम और मुल्क को तबाह कर रहा है। मादनियात से मालामाल बलूचिस्तान के अवाम तो वक्त की इज्जत की रोटी से महरूम है। चंद अफराद सूबे के वसाइल पर काबिज हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 2 पार्टियां हैं, एक जालिमों की पार्टी और एक मजलूमों की पार्टी। कौम के साथ होने वाले मजालम पर खामोश नहीं बैठ सकते। कौम को जालिमों के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद करने के लिए निकला हूं। ऐसे हुक्मरान कौम के खैर ख्वाह कभी नहीं हो सकते। डेरा मुराद जमाली GTA आईनी के सूबाई चेयरमैन सरदार बबरक खान इमरानी की क़यादत में जिला नसीराबाद के वक्त कादराबाद बालानशाह का दौरा हुआ। इस मौके पर कादराबाद सर्कल स्कूल के 5 दर्जन से ज्यादा असातिज़ा कराम ने GTA को खैरबाद करके सूबाई चेयरमैन सरदार बबरक खान इमरानी अताउल्लाह सासोली की क़यादत पर एतमाद करते हुए GTA आईनी में बड़ी तादाद में शमूलियत का ऐलान कर दिया। उस्ताद मोहम्मद इकबाल चटक और दीगर ने नए शामिल होने वाले असातिज़ा कराम को कहा कि GTA आईनी की आदत निडर, मुखलिस और सच्ची है, जो असातिज़ा के दुख दर्द और मसाइल को अपना समझती है, इसलिए शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर चेयरमैन सरदार बबरक खान इमरानी अताउल्लाह सासोली ने खिताब करते हुए कहा कि असातिज़ा के हकूक़ के लिए जदोजहद करेंगे। GTA आइन का मकसद बलोचिस्तान भर के असातिज़ा को दरपेश मसाइल के हल, सूबे में तालीमी निज़ाम की बेहतरी, तलबा और तालिबात को स्कूल में सहूलियात की फराहमी के लिए जदोजहद करना है। इस मौके पर उस्ताद मोहम्मद इकबाल चटक की जानिब से असातिज़ा कराम के एजाज में पुरतकल्लुफ इस्तकबालिया भी दिया गया। महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन के खिलाफ जमात इस्लामी का जाफराबाद में जलसा आम, जमात इस्लामी के रहनुमा और कारकुनान समेत हजारों अफराद की शिरकत। इस मौके पर जमात इस्लामी के अमीर सेनेटर सिराजुल हक ने अपने खिताब में कहा कि PDM और PTI एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। उन्होंने अपने अपने दौर में करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए, आवाम को मायूसी के सिवा कुछ न दिया। पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI 3 पार्टियां नहीं बल्कि एक ही ग्रोह के 3 नाम हैं। हकीकत में एक ही टोला है जो कौम को लूट रहा है। जमात इस्लामी आज आपके पास पाकिस्तान की फलाह व बका का पैगाम देकर आई है। आए इस दलदल से साथ मिलकर पाकिस्तान को निकालें। एक मुल्क दुश्मन जासूस अभिनंदन को मेहमान समझकर वापस किया गया। इमरान की मुआशी टीम को अब तक हम ढूंढ रहे लेकिन नजर नहीं आई। पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI एक हैं, ये 3 नहीं। जड़ावाला अंजुमन सब्जी मंडी का मुश्तरका इजलास
सदर चौधरी जिशान जट के दफ्तर में हुआ। इजलास में मुख्तलिफ अमूर ज़ेरे गौर आए और सब्जी मंडी से मुतल्लिका मुख्तलिफ फैसले किए गए। इजलास में तय पाया कि सब्जी मंडी के अंदर बैंक का होना जरूरी है, क्योंकि व्यापारी, आड़ती और जमींदार लोग करोड़ों का कारोबार करते हैं और ये रकम साथ लेकर शहर के बैंकों में जाना खतरे से खाली नहीं। इस मौके पर अंजुमन सब्जी मंडी ने हुकूमत वक्त से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि माहाना हजारों का रेवेन्यू सब्जी मंडी से जाता है, लेकिन सब्जी मंडी के ताजर जमींदार खुद को गैर महफूज समझते हैं। उन्होंने कहा कि मंडी के दाखिली और खारजी रास्तों पर लोहे के गेट लगना जरूरी है, जिसका हमसे तमाम सियासतदानों ने वादा किया, लेकिन अफसोस किसी ने भी वादा वफा न किया। ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਖੁਦ ਮੰਡੀ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਬਚਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੈੱਡ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸੇਫ ਰਹੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਦਾ, ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾ ਫੜੀਏ ਆ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈੱਡ ਫੌਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਗੇਟ ਲਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। कामुकी के इलाके दराजके खेतों से नौमलूद की लाश बरामद हुई। थाना सदर कामुकी के इलाके दराजके के खेतों में एक नौमलूद की लाश देखकर अहले इलाका ने पुलिस और रेस्क्यू को इत्तला कर दी, जिस पर दोनों टीमें मौके पर पहुंच गईं और नौमलूद की लाश को कब्जे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक नौमलूद को जरूरी कार्रवाई के बाद दफना दिया जाएगा। हतीजी थाना समसट्टा की हदूद पे पुलिस मुकाबला बिलाल उर्फ बिल्लू हलाक बिल्लू हसाम जनूबी पंजाब के मुतादिद थानों को मतलूब था। समसट्टा के इलाके मुजफ्फरबाड़ा में पुलिस मुकाबला, एक डाकू बिल्लू हसाम अपने साथियों की फायरिंग से हलाक, साथ ही मुलजिमान फरार हो गए। पंजाब के मुख्तलिफ थानों में बैनुल इस्लाही गैंग का सरगना बिलाल उर्फ बिल्लू हसनाम अपने साथियों के हमरा गन प्वाइंट पर मकबूलाबाद इलाका थाना मुसाफिर से मोटरसाइकिल 125 छीन कर फरार हुआ। इत्तला पर पुलिस ने नाकाबंदी कर ली। डाकुओं ने नाके पर पुलिस को देखते ही जान से मार देने की खातिर सीधी फायरिंग कर। पुलिस ने जवाबी फायरिंग के दौरान साथी मुलजिमान की फायरिंग से एक बिलाल उर्फ बिल्लू हसनाम हलाक। पुलिस ने नाकाबंदी करके नामालूम मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। कामुकी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सरकारी सामान चोरी करने और मुबैना तौर पर भत्ता लेने का इंकशाफ हुआ, जहां एक सैनिटरी वर्कर सुपरवाइजर के खिलाफ मैदान में आ गया। सैनिटरी वर्कर की निशानदेही पर चोरी की जाने वाली रेहड़ियां बरामद होने के बावजूद असिस्टेंट कमिश्नर और सीईओ ने दोनों सुपरवाइजर्स के खिलाफ सैनिटरी वर्कर की निशानदेही पर चोरी की जाने वाली रेहड़ियां बरामद होने के बावजूद असिस्टेंट कमिश्नर और सीईओ ने दोनों सुपरवाइजर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई न की। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कामुकी में सैनिटरी सुपरवाइजर बशीर और खालिद की मुबैना करप्शन सामने आई है, जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हाथ वाली रेहड़ियां चोरी करके प्राइवेट तौर पर किराए पे देते थे और हर सैनिटरी वर्कर से माहाना 3000 रूपये भत्ता वसूल करते हैं। एक सैनिटरी वर्कर ने हिम्मत करके इन बाज़र सुपरवाइजर के खिलाफ आवाज उठाई और उसकी निशानदेही पर असिस्टेंट कमिश्नर और सीईओ खुरम महमूद ने चोरी की गई 10 हाथ वाली रेहड़ियां बरामद कर ली, मगर दोनों सुपरवाइजर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में न लाई गई। इस हवाले से सैनिटरी वर्कर इमरियाज मसीह का कहना है कि उसने सुपरवाइजर्स के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, जिस पर वो उनको कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं। उसने मजीद बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर और सीईओ को दरख्वास्त देने के बावजूद उसकी सुनवाई नहीं हो रही। सैनिटरी वर्कर ने हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। गुजरावाला थाना धले के इलाके में फैक्ट्री से दिन दिहाड़े 4 मजदूरों के अगवा का मामला। धले पुलिस ने लधेवाले में कार्रवाई करते हुए 4 मुखबियान मजदूरों को बाजियाब करवा लिया। मुखबियान को बाजियाब करके 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से जदीद असलहा भी बरामद किया गया। मुलजिमान ने फैक्ट्री के मालिक से लेन देन के मामले पर उसके 4 मजदूरों को असलहे के जोर पर अगवा कर लिया था। मुलजिमान असलहे के जोर पर मजदूरों को कार में अगवा करके फरार हुए थे। अहमदपुर शर्किया कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खदशे के पेश नजर आज से कारोबार तफरीही मुकामात शाम 6 बजे बंद। इंडोर आउटडोर शादियों पर पाबंदी। हुकूमत के ऐलान करदा मुताबिक कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचने के लिए तहसील अहमदपुर शर्किया में नई पाबंदियां लगा दी गई। कारोबार और तफरीही मुकामात शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे। मेडिकल स्टोर्स, गोश्त, दूध की दुकानें और बेकरीज 24 घंटे खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स, इंडोर आउटडोर शादी हॉल्स और सिनेमा हॉल्स पर पाबंदी आयद कर दी गई। इन ख्यालात का इजहार अहमदपुर
शर्किया के असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान गिलानी ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन का इत्तलाक 29 मार्च तक नाफिजुल अमल रहेगा और कारोबारी मनाफिज शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे, जबकि हफ्ता और इतवार काम करने की हरगिज इजाजत नहीं होगी। ताहम तमाम मेडिकल सर्विसेज, फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबोरेटरीज, कलेक्शन प्वाइंट्स 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन खुले रहेंगे। बेकरीज, ग्रोसरी स्टोर्स, जनरल स्टोर्स, चक्कियां, फ्रूट सब्जी की दुकानें, तंदूर, पेट्रोल पंप्स को पूरा हफ्ता 24 घंटे खुला रहने की इजाजत होगी। टायर पंक्चर शॉप्स, फिलिंग प्लांट्स, वर्क शॉप्स, स्पेयर पार्ट्स शॉप्स और जरी मशीनरी और आलात की दुकानें भी 24 घंटे खुली रहेंगी, जबकि तमाम तफरीही मकामात और पार्क्स शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। अवाम की जिंदगी को मामूल पर लाने के लिए हुकूमत पंजाब का साथ देते हुए एसओपीज को जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। उनका मज़ीद कहना था कि फौरी तौर पर ये पाबंदियां लगाने से कोरोना की मुतवक्की तीसरी लहर पर बरवक्त काबू पा लेंगे। अहमदपुर शर्किया का सर्कल थाना चुन्नी गोट पुलिस की कार्रवाई, 2 मुलजिम गिरफ्तार, शराब बरामद, मुकदमा दर्ज। शराब फरोश मुलजिम शौकत और सुभान से 82 लीटर शराब बरामद हुई। मुजफ्फरपुर दरियाई चनाब में डूबने का वाकया, वहीद हुसैन को दरियाई चनाब में डूबे हुए तीसरा दिन है, ताहा लाश न मिल सकी। रेस्क्यू टीमें और महमूद मिल की तरफ से कश्तियां दी गई हैं और लाश को तलाश करने में मसरूफ है। वहीद हुसैन के वालिद ने कहा है कि हमारे साथ कोई ताउन नहीं कर रहा, न जिले इंतजामिया न सियासी रहनुमाओं की जानिब से कोई ताउन किया जा रहा है। तीसरा दिन है, लाश की तलाश जारी है, लेकिन ताहा लाश न मिल सकी। रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं। इसके अलावा माँ बाप की आहो पुकार कि हमारी कोई मदद नहीं की जा रही। ज़ेरे नजर तस्वीर में कच्चा शाही रोड सादकाबाद के एक हाई पावर बिजली के पोल की है, जो कि इस वक्त रुकू की हालत में है और वापडा की नाअहली कि ये खंबा गुज़श्ता 3 माह से इसी हालत में खड़ा है और हमारी वापडा इंतजामिया इंतजार में है कि कब ये खंबा सजदा रेज हो, 8 से 10 या उससे भी ज्यादा लोग इस हादसे का नवाला बने तो हम खंबा दोबारा खड़ा करें। लिहाजा मेरी आला हुकाम से अपील है कि बराए मेहरबानी इस बात का नोटिस लिया जाए और खंबे को किसी बड़े हादसे से पहले ठीक किया जाए। मीरपुर खास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली और जिले सदर नवाबजादा मीर मुनव्वर अली खान तालपुर और रुकन सिंध असम्बली सैयद जुल्फिकार अली शाह ने मेहमान खुसूसी के तौर पर म्यू फाउंडेशन के जेर तमाम तकरीब रोनुमाई माहिर अजमेरी शख्सियत फन और उर्दू सिंधी कल पाकिस्तान महफिल मुशायरा में शिरकत की। इस मौके पर म्यू फाउंडेशन के सदर मोहम्मद इमरान म्यू, जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट गुलाम नबी म्यू, हाजी मोहम्मद उस्मान म्यू, माहिर अजमेरी हबीबुल्लाह हबीब, एडवोकेट अदनान, मीर उल हदात, मीर जानी तालपुर, जुनेद खान, मीर मारिक तालपुर, मीर हसन धोकाई, अब्दुल सलाम मेमन और दीगर मौजूद थे। हारूनाबाद शहर में स्लॉटर हाउस न होने की वजह से गली मोहल्लों में मस्बाह खाने खुल गए। इंतजामिया लंबी तान कर सो गई। वेटनरी अमले और किसाबों की मौजें। अवामी समाजी हलकों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद इस हवाले से देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट। हारूनाबाद शहर में गली मोहल्लों में स्लॉटर हाउस खुल गए। घरों में फरोख्त के लिए जानवरों को ज़िबा करने का सिलसिला जारी है। गलियों की नालियों में जानवरों का खून और गंदगी के ढेर तफून और बीमारियां फैलाने लगे। हारूनाबाद शहर में ना तो कोई स्लॉटर हाउस है, ना ही फरोख्त के लिए ज़िबा किए जाने वाले जानवरों को चेक करने का कोई निज़ाम है। बारी तनख्वाहों पर तैनात वेटरनरी डॉक्टर की जानिब से कीमतें फरोख्त की मुनासिबत से सेहतमंद जानवरों की पड़ताल का कोई निज़ाम नहीं। वेटरनरी डॉक्टर और अमला दफ्तरों तक महदूद। कोई बाजारों में आकर अवामी शिकायत दूर करने के लिए तैयार ही नहीं। इन्हीं वजूहात की बिना पर किसाब हजरात ने जहाँ गोश्त महंगे दामों फरोख्त करना अपना वतीरा बना लिया है, वहीं बीमार लागर जानवर सस्ते दामों खरीद कर घरों में ज़िबा करके दुकानों में सजाकर फरोख्त करना मामूल बना लिया है। दूसरी जानब किसाबों के फट्टों पर हिफाजती जालियां भी नापीद हैं। मुकामी अवामी समाजी हलकों ने जिम्मेदार इंतजामिया से अपील की है कि घरों में कायम स्लॉटर हाउस बंद किए जाएं और सेहतमंद जानवरों के गोश्त, सफाई और इनकी पड़ताल के निज़ाम समेत सरकारी नरखनामों पर पाबंदी मुमकिन बनाई जाए। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। शाहपुर वापडा निष्कारी के खिलाफ मुलाजमी की हड़ताल और एहतजाज। मुलाजमी ने निष्कारी के खिलाफ नारेबाजी की। वापडा की निष्कारी किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे। वापडा निष्कारी के खिलाफ सब डिवीजन वापडा शाहपुर के मुलाजमीन ने एक रोजा हड़ताल और एहतजाज किया। हुकूमत के इस अमल से जहां मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान का अंदेशा है, वहीं दूसरी जानिब इक़दाम वापडा के मुलाजमीन के मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। मुलाजमीन का कहना था कि हुकूमत निष्कारी का फैसला फौरी तौर पर वापस लेते हुए वापडा का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाए और इदारे की अंदरूनी सूरत हाल की इस्लाह की जाए। वापडा का इदारा मुल्क की मईशत और दिफा में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। थल में ज़हनी माजूर बच्चे को वहशी सिख दरिंदों ने मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला।
ठल के थाना ए सेक्शन के हदूद में गांव मोरखो में 8 साला बच्चा ज़हनी माजूर यूसुफ सरकी को ज्यादती का निशाना बनाया गया। मुतासरा बच्चे के वालिद मोहम्मद बख्श सरकी का कहना है कि मंजूर उर्फ बच्चू सरकी ने मेरे बेटे को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया है। ठल मुतासरी ने वज़ीर आला सिंध IG सिंध समेत SSP जैकबाबाद से मुतालबा किया कि वहशी सिर्फ बाज़ शख्स को गिरफ्तार करके मुकदमा इंदराज किया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। तब्दीली सरकार के दौर में वो वादा ही किया जो वफा हो। यू टर्न की माहिर हुकूमत ने नाबीना अफराद के साथ भी यू टर्न लेते हुए उनसे उनका रोजगार छीन लिया। जिला कसूर में 3 नाबीना अफराद जो 2 माह तक अपनी नौकरी सर अंजाम देते रहे, इंतजामिया ने फंड न होने का बहाना बनाते हुए उनको नौकरी से फारिग कर दिया। मीरपुर खार डिग्री टंडो गुलाम अली रोड पर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार खातून शदीद जख्मी, निजी अस्पताल मुंतकिल, ड्राइवर गाड़ी समेत गिरफ्तार। शाहिद वद मोहम्मद सईद अराई अपनी जोजा के साथ घर जा रहा था कि अचानक एक तेज रफ्तार इम्प्लीमेंटेशन यूनिट की गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में शाहिद वद मोहम्मद सईद की जोजा शदीद जख्मी हो गई, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट जेल में 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग कैदियों मैक्रोना वैक्सीन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया और जेल में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद शफीक, डिस्ट्रिक्ट सुप्रिंटेंडेंट जेल वहीद खान और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल राना शमशाद के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल से 60 साल से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब जेलों में कैदियों की बेहतरी के लिए जदीद इस्लाहात ला रही है। हुकूमती हिदायत के मुताबिक जेलों में 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग अफराद को कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला मंडी बहाउद्दीन के 1000 से ज्यादा फ्रंट लाइन वर्कर्स के अलावा दूसरे मरहले में भी 60 साल के बुजुर्ग अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसके कोई मुज़रे असरात रिपोर्ट नहीं हुए। कबल अज़ीम डिप्टी कमिश्नर ने जेल में शजरकारी मुहिम के तहत एरोकेरिया और अशोक का पौधा लगाते हुए कहा कि दौरे हासिल में बढ़ती हुई माहौल आलूदगी के खात्मे और शजरकारी के फरोग से माहौलियाती आलूदगी से निजात पा सकती है। उन्होंने कहा कि शजरकारी का मफहूम सिर्फ दरख्त लगाना ही नहीं बल्कि उसकी मुनासिब देखभाल और तनावर दरख्त बनने तक उसकी निगहदाश्त भी निहायत जरूरी है। उन्होंने मेहमानों की खिताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। मंडी बाउदी रेलवे स्टेशन के करीब निजी गुड्स ट्रांसपोर्ट के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते सारे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। लाखों रुपए का मालियाती सामान जल गया। जराये के मुताबिक मंडी बहाउदी गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। मंडी बहाउदी रेलवे स्टेशन के करीब गोदाम में आग लगी। आग इस कदर ज्यादा थी कि चारों तरफ पड़े सामान को अपनी लपेट में ले लिया। जराये के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने में कामयाब हुई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग बुझाने वाली 4 गाड़ियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मीरपुर खार डिग्री पुलिस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 अफराद गिरफ्तार, असलहा, चर्स और मुबैना चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद। डिग्री पुलिस के मरकजी बस स्टॉप पर कार्रवाई। हलाबाद कॉलोनी डिग्री का रिहायशी इरफान अली वल्द मोहम्मद अशरफ मलिक गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 1 अदद पिस्टल, 4 गोलियां और 1 मुबैना चोरी शुदा होंडा मोटरसाइकिल बरामद हुआ। डिग्री पुलिस की दूसरी कार्रवाई में 170 रोड से राजा टाउन डिग्री के रिहायशी शेजान अली वल्द याकूब अराई को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 550 ग्राम चर्स और 1 अदद चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद कर लिया। दोनों मुलजिमान पर मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। हरमैन ट्रेन इंतजामिया ने मुसाफिरों से कहा है कि वो आइंदा पीर से हरमैन ट्रेन के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवा सकती हैं। बुध 31 मार्च से ट्रेन दोबारा चलने लगी। याद रहे कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सर्विस मुअत्तल की गई थी। अल अरेबिया नेट के मुताबिक हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन इंतजामिया ने मुसाफिरों से कहा है कि वो आइंदा पीर से ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी और जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आमदोरफ्त के टिकट खरीदे जा सकेंगे। सऊदी अरब में हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन का मंसूबा मशरिक वस्ता में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा दुनिया का 6वां मंसूबा है। 60 अरब रियाल की लागत से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया गया है। सऊदी हुकूमत ने हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस हज और उम्रा ज़ायरीन, मुकामी शहरियों और गैर मुल्कियों को सहूलत की खातिर मुहैया किया है। डचकोट पुलिस गर्दी का दूसरा वाकया। एक और नौजवान पुलिस गोली का निशाना बन गया। SHO थाना डचकोट उमर सरफराज पर मुकदमा दर्ज। FIR आतिफ नामी शहरी को कत्ल करने का इल्जाम है। FIR SHO समेत 12 पुलिस मुलजमान पर दर्ज है। फैसलाबाद थाना सदर में इसे दर्ज किया गया। हादसाबाद से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ मेयर फारूक के मुताबिक
हाफसाबाद हुक्म इम्तनाई के बावजूद मुलजिमान ने गरीब खातून के घर को सामान बाहर फेंक कर आग लगा दी। भागा बटिया में मुलजिमान का मेहनत कश खातून के घर पर हमला। रात के खातून के घर पर 62 अफराद ने बीसियों साथियों के हमरा धावा बोल दिया। रहती खातून और बच्चों पर डंडों और लाठियों से बेईमाना तशद्दुद किया। मुलजिमान ने बेवा के घर का सामान बाहर फेंक कर घर को आग लगा दी। मेहनत कश खातून के घर पर पुलिस की मौजूदगी पर कब्जा किया गया। इल्जाम रेस्क्यू 15 पर कॉल करने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन खामोश तमाशाई बनी रही। मुतासरा जरका रानी घर शामिल प्लाट पर तामीर किया गया और उसका मुकदमा अदालत में जेर इलाज है। मुतासरा जरका रानी का कहना है कि घर शामिल प्लाट पर तामीर किया गया है और उसका मुकदमा अदालत में जेर समाअत है। ये थी अब तक की अहम खबरें। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। आप हमें मज़ीद खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल, फेसबुक और हमारी वेबसाइट पर फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे मज़ीद अहम खबरों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।